Hello students. So today I am with my second lecture, chapter second of history, from trade to treaty. In my first lecture, I told you that before coming as a trader in India, the Britishers defeated its European rival like Portuguese, French and Dutch, and after that they ruled over India. So as a trader they came, you can say entered in our country and became the ruler of this country. So in the page number 11 of our book, the topic is East India Company begin trade in Bengal. So from Bengal they started that. But the main thing is that why the Britishers got success regularly. So reason for the success of the Britishers, first one, British naval supremacy. Due to their supremacy over the seas, the British ensured an uninterrupted supply of arms and resources from England. इनकी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि बिना किसी रुकावट के इंग्लैंड से डायरेक्टली रिसोर्सेज और आर्म्स इजीली इन्हें अवेलेबल हो जाते। सेकेंड पॉइंट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। द ब्रिटिश कंपनी वाज फाइनेंशियली मच स्ट्रॉन्गर देन द फ्रेंच। इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी ब्रिटिशर्स की काफी स्ट्रॉन्ग थी एंड द कैप्टिविटी ऑफ द रिच एंड प्रॉस्पेरस province of Bengal became an additional source of wealth for the British. And second thing, they captured the resources of Bengal, and that also given them a lot of help. Then capable leaders. So the English were led by capable officers like Robert Clive. Opposite of that, the French. What is it? The French eliminated the Dupleix, and this was the main cause of their defeat. Then freedom from government control and interference. The British trading company in India is completely free from the control of the British government. The company has its own rules. And then the conquest of Bengal. The Mughal Emperor Farooq Shah had permitted the British to trade in Bengal without paying any custom duty. So जो मुगल एम्परर था फारूक शाह, उसने ब्रिटिशर्स को ये परमिशन दे दी कि वो बिना किसी कस्टम ड्यूटी के वहां पर ट्रेड कर सकते हैं, और दिस लेड टू एन इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर द नवाब ऑफ बंगाल। इससे जो है बंगाल के नवाब को बहुत ज्यादा पैसे का नुकसान हुआ। एंड द सिचुएशन वर्जन बिकॉज ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी स्टार्टेड देयर प्राइवेट ट्रेड साइड बाय साइड विदाउट पेइंग एनी कस्टम ड्यूटी। और स्थिति और ज्यादा खराब तब हुई जब कंपनी के अधिकारियों ने, ऑफिसर्स ने अपना प्राइवेट बिजनेस करना शुरू कर दिया। सो दीज आर द मेन रीजंस how the Britishers got success for making their position strong in India. After that, how trade led to battles. Trade कैसे battle में convert हुई? From page number 12 to 14, you read these 3 pages from your book, and you will get the result of that. And in that, you will get the how the Battle of Plassey took place in the year 1757 and how the Battle of Buxar took place in the year 1764. So first Battle of Plassey, it took place in the year 1757, and one side British army and second side Nawab of Bengal, Sirajud-Dowla. So the clash between the British and the Nawab of Bengal, Sirajud-Dowla, began when the Nawab, furious at the British for their gross misuse of power, attacked the English factory at Kasim Bazar
captured the company officials and blocked the English ships. So सिराजुद्दौला ब्रिटिशर से इसलिए नाराज हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी पावर का गलत उपयोग किया था। उन्होंने ब्रिटिश फैक्ट्री जो कासिम बाजार में थी उसे अटैक किया और उसको अपने कंट्रोल में ले लिया और इंग्लिश शिप को ब्लॉक कर दिया। देन द नवाब मार्च टू कलकत्ता। ये चीज करने के बाद नवाब कलकत्ता की ओर गया और कलकत्ता को अपने कंट्रोल में ले लिया एंड ही कैप्चर्ड द फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में, उसको जो है वापस मुगल ने, स्पेशली सिराजुद्दौला ने अपने कंट्रोल में ले लिया। सो ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द फॉल ऑफ कलकत्ता, कंपनी ऑफिशियल्स इन मद्रास सेंट फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। जब मद्रास में जो ब्रिटिश आर्मी थी उसको एक खबर मिली कि कलकत्ता अब ब्रिटिशर्स के अधिकार में नहीं रहा, तो वहां से जो है रॉबर्ट क्लाइव को आर्मी के साथ इनकी मदद करने के लिए, यानी कि कलकत्ता की ब्रिटिश आर्मी को मदद करने के लिए भेजा गया रॉबर्ट क्लाइव को। एंड देयर वाज नो ऑप्शन बट ए मेजर वॉर। एंड फॉर रॉबर्ट क्लाइव there was only one option, that was war. And the first open war between the British and the Nawab of Bengal took place at Plassey in 1757। इस तरीके से 1757 में प्लासी में यह युद्ध हुआ। In this battle, Sirajuddaulah was defeated and killed. So प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला मारा गया और हार गया। After that, main reason of the loss of Sirajuddaulah was that important commanders, one of the important commander had secretly joined hand with the British as they had promised to make him Nawab after crushing Sirajuddaulah। इसका मेन कारण क्या था? ट्रेजेडी। सिराजुद्दौला को हराने के लिए उसकी एक इंपोर्टेंट कमांडर ने जो है ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिला लिया और उसको ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि सिराजुद्दौला का हार देगा और उसको वहां का राजा बना दिया। देन व्हाट टाइप ऑफ बेनिफिट्स द ब्रिटिशर्स गॉट after the battle of Plassey? Number one, the East India Company got free trading rights in Bengal। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का फ्री ट्रेडिंग राइट मिल गया। सेकेंड पॉइंट, द ब्रिटिश गॉट द जमींदारी ऑफ 24 परगना, 24 राज्यों का जमींदारी मिल गई। एंड दे यूटिलाइज, थर्ड वन इज दे यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ बंगाल टू मेंटेन अ लार्ज एंड वेल इक्विप्ड आर्मी। अब उन्होंने क्या किया, जो बंगाल के रिसोर्सेज थे उसके द्वारा ब्रिटिश आर्मी को ढंग से मेंटेन करने लगी। एंड द फोर्थ वन इज द ब्रिटिश आल्सो स्टार्टेड ड्रेनिंग द वेल्थ फ्रॉम बंगाल, और धीरे धीरे ब्रिटिशर्स बंगाल से पैसा खींचने लगे। सो आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द ब्रिटिश made Mir Jafar to sit on the throne of Bengal, but the puppet Nawab could not meet the never-ending demand of the company's officials for presents and bribes। उसके बाद प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को ब्रिटिशर्स ने राजा बना दिया और वो पपेट रूलर की तरह काम करने लगा, मीन्स ब्रिटिशर्स के ऑर्डर को ही फॉलो करने लगा। और बाद में स्थिति यह हो गई कि जो है वो ब्रिटिशर्स की डिमांड को पूरी नहीं कर पाया। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, इट टुक प्लेस इन द ईयर 1764 एंड इट फॉट इन बिटवीन ब्रिटिश आर्मी एंड मीर कासिम। सो व्हेन मीर जाफर could not meet the ingoing demand of the company, he was disposed and replaced by Mir Qasim। जब
मीर जफर ब्रिटिशर्स की डिमांड को पूरी नहीं कर पाया, तो उसके बाद उसको हटा करके मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। बट मीर कासिम रिफ्यूज टू बी अ पपेट रूलर, लेकिन वो पपेट रूलर की तरह काम करने के लिए एग्री नहीं था। ही ट्राइड टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल एंड इट्स आर्मी, उसने बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने की कोशिश की, उसकी आर्मी को इंप्रूव करने की कोशिश की। एंड ही ट्रेन्ड हिज सोल्जर्स ऑन द लाइंस ऑफ द यूरोपियन आर्मी, और उसने अपने सैनिकों को, अपनी आर्मी को यूरोपियन आर्मी की तरह डेवलप करने की कोशिश की। सो एज ए रिजल्ट ही वॉज ओवरथ्रोन एंड टर्न आउट ऑफ बंगाल एंड बिहार, इस तरीके से उसे भी हटा दिया गया और बंगाल बिहार से बाहर कर दिया गया। In the battle of Buxar, फिर बक्सर का युद्ध हुआ। In that battle, it was fought between the British and Mir Qasim. The latter formed an alliance with the Nawab of Awadh, Shujauddaulah, and the Mughal Emperor Shah Alam II. तो इन तीन लोगों ने मिलकर के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बक्सर में युद्ध किया। Their combined army met the British forces at the Battle of Buxar in the year 1764, where the English defeated them. यहाँ भी इन तीनों की आर्मी को मीर कासिम और शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड की आर्मी को ब्रिटिशर्स ने हरा दिया। Thus, while in Plassey, the British defeated a young and inexperienced Nawab. प्लासी युद्ध में ब्रिटिशर्स ने यंग और अनुभवहीन राजाओं को हराया, लेकिन यहां पर उन्हें 3 राजाओं को और 7 अनुभवी राजाओं को हराया। Thus, a dual government was established in Bengal. इस तरीके से बंगाल में एक ड्यूल गवर्नमेंट स्टेबल हुई और where British collected land revenue, जहां पे ब्रिटिशर्स लैंड रिवेन्यू को जो है कलेक्ट करते थे, लेकिन इंटरनल अफेयर जितने भी थे, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वर्क, maintaining the law and order and defense of the state remained with the head of Nawab. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट। जो पैसा कलेक्शन का काम था वो ब्रिटिशर्स का था, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी काम थे वो बंगाल के नवाब के हाथ में थे। सो दिस वे द ब्रिटिशर्स गॉट सक्सेस एंड बिकेम द मास्टर ऑफ इंडिया। एज अ ट्रेडर दे entered in the country but became the master of our country. This was due to their great efforts and determination. So thank you for today.